Hi, Wakar. Thanks for your time ahead of this second test. Obviously, a disappointing result in the first, but I just want to ask you straight out of the box about Naseem Shah. You know, probably the first time lots of us have seen him bowl live. You know, clearly someone you must be very excited to work with. Just give us your impressions of his first test, how you think it went, and what your expectations are of him in the future. Look, it was a tough pill to swallow to begin with, losing the last test match, because I thought we won more sessions, we played really well, but unfortunately we lost sessions at the wrong time, and that really cost us game. We're talking about Naseem Shah. He's very talented, and he, he's only 18, 17 years of age. He's still growing. His bones are growing, and uh, but what a talent he is. I mean, I don't think he he really bowled as well as we expected in the previous game. But he can really bowl well. He can really take the opposition on at times. But because he's young, he's inexperienced, and it gets tough sometime. But yeah, he's one for the future. He's gonna get stronger and hopefully get fitter, and will be able to bowl longer spells, and will cause trouble, uh, you know, to batsmen around the world. He looks like he has quite a bit of fire, quite a bit of attitude as well. Some lengthy stairs running down, making sure the batsman knew he was around. I mean, that must be a great thing as well. Well, that's the whole idea. I mean, if you're a fast bowler, you should be able to, look in the eyes of the batsman, and run hard, and make sure you trust your ability, which he does. And as I said, he's very young, and he will he's still learning. It's gonna take a bit of time. Plays more cricket. I think he's gonna get maturer, and then he'll probably will be a lot more harder to face once he's got more experience, I guess. Okay, yes, Rory, you can ask a question. Wakar, you guys had some really good success against Ben Stokes in the last match, more than most people have had for a while. Just wondered, though, with him not being part of the England dressing room, is that a boost? Because they always talk about sort of how much inspiration he gives the rest of them, and he's kind of a leader, whether he's getting runs or not, I suppose. Yeah, there's no doubt about that. He's a kind of a batsman who takes the game away from you single-handedly at times. So I wouldn't say it's a boost, because the way we bowled at him in the previous game, I thought we had very clear plans, and I think we executed really well. And yes, he's not around. Is unfortunate for cricket, but there's no doubt he's a match winner. So if he's not around, probably England will probably be a touch light when you talk about the middle order. So we're going to probably talk about it and try to cash into it. Next. Wakar, I'll jump in. I think I'm next on the chat. Yasir Shah ended up being really important last week. He's had some sort of well-documented highs in his career and also lows as well. What is it about the leg spinner that enables him to bounce back so well, seemingly after low points, and ends up being able to really influence games? What is it about his personality? Oh, he's a match winner. He's a very attacking bowler. He likes to be involved in the game all the time, which you've seen with his batting also, with his bowling, with his aggressive approach also. And we are very lucky to have him. He's won Pakistan heaps of games in the past. His record really speaks for itself. Unfortunately, he couldn't really finish the game. That pitch was tailor-made for him. He picked up 8 wickets, but he could have really rolled over the England. But that's the way cricket goes. Sometimes it comes your way, sometimes it doesn't. But we have full faith in him that he is going to deliver in the next coming games. Okay, yes, Julian, you can ask the question.
Hello, Wakar. During the West Indies series, we saw that some of their fast bowlers got tired through a series of back-to-back matches. I just wondered how your fast bowlers were shaping up and whether you plan to play the same pace attack again. Look, we haven't decided who we're going to play at the moment, but you know, we haven't played any cricket for a long period of time. It's been a good 4 or 5 months. We played this last Test match, and I don't think that is an issue at the moment with the team. Yes, it's very hot here. I'm sure looking at the temperatures, it's going to cool down in the next few days, and I'm sure these guys are still capable and has got plenty of gas left in them to tackle this Test match, and we'll see after that how it goes. Thank Yes, you. Daniel, please. Hi, Wakar. Misbah and Azhar both spoke about balance in the side at number 7. And I was wondering if you wanted an extra pacer with someone like Fahim Ashraf. I know you've worked a lot with him on his bowling, but the previous head coach Mickey Arthur said he didn't consider him an all-rounder. So I just wanted you to assess both how his bowling has come along and what do you make of his batting if you were to bat as high as number 7. Look, he's another very talented cricketer. It's that unfortunate that he hasn't really kicked off yet. In his career, he's been good T20 one-day bowler, but when it comes to Test match cricket, he hasn't really played that many, and then he didn't really impact it in those games. So, you know, he's here. We are really looking into him. If Misbah and Azhar have spoken about it, I'm not sure if they, we haven't really decided anything yet. So if they're thinking about it, we're definitely going to gear him up and see if he's ready to go and deliver the goods for Pakistan. Yes, Paul, you can ask a question. Oh, thank you. Hello, Wakar. Hello, Paul. Can I also ask about Nazim, please? Obviously, you were very young yourself when you made an impact, a similar age to him, if not younger. What's it like? What are the pressures like on the big stage when you're so young and you're playing at the highest level? And also, can he go on to do, dare I say it, as well as you did and become one of the greats? Look, cricket has changed from our time to now. There's a lot of data, and there's a lot of technicalities involved. Our days it was very pure. We used to just run in and bowl. There was no knowledge around that. Okay, you have to bowl certain batsmen certain ways. You just got to go out there and work it out. And now, because it's all mathematics, you have to really calculate. And he's young, as I said. He's very talented. He's got a very good action. All he needs to do is probably get stronger and fitter. Probably once he gets fitter and bowl more overs, he will definitely be force for Pakistan in the next coming few years. But when you talk about becoming a great, it's very, very difficult to mature about anyone. Pakistan has over the years produced some really, really quality fast bowlers in the last 2.5, 3 decades, I know. So if he keeps himself fit and strong and keep bowling, I'm sure that he's got the potential of becoming a very good bowler. Thank Okay, you. last question in English. Tim, please, you can ask the question. Hi, Wacker. It seems like we're in a kind of golden era of fast bowling around the world. Is that how it feels to you as well? And do you have any reasons for why we have so many fantastic pace bowlers around the world today? Look, every era has their own beauty of fast bowlers. I mean, you go back in the 90s, you'll find the West Indians, 70s West Indians. West Indians have really dominated. Dennis Lilly, Malcolm Marshall, you name it, Wasim Akram, Glenn McGrath. I mean, there were so many in the past also. The fast bowling has always been a beauty of cricket, and now we have got heaps of them. And because certain teams play a lot more Test matches than the others, and the record really suggests that those guys have got more wickets. I mean, in England, for example, the two supreme fast bowlers, they have played so much cricket here in England that we don't play in Pakistan. So the quality is there, no doubt about that. And
and it's good for the game. I feel that it is very, very good for the game that all these quality fast bowlers are coming around and making this game look prettier. Okay, thank you. We will come to the Urdu questions. Please, अपने जो उर्दू वाले हैं questions वो मुझे chat पे please भेज दीजिएगा. First, I will ask you Moiz Shah साहब, Rashid Shakur, Shahid Hashmi, and Ali Hashmi, please. Assalamu alaikum, Waqar. Ji, walaikum assalam. This is your question about Naseem Shah first. His action looks a bit changed one. When I saw him a year back, that was straight action. Now it's a bit of side arm action. My first question is about his action. And second question is, have you seen the wicket where Pakistan is going to play tomorrow? What kind of surface you think this is? Naseem के बारे में, I don't think his action is changed. I think it's all the same. क्योंकि क्रिकेट खेली नहीं है काफी अरसे से, कोई competitive क्रिकेट नहीं खेली हुई, तो शायद आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि कुछ चेंजेस हैं, but I don't think there's anything changed in his action. पिच अभी मैंने देखी नहीं है, तो अभी हम आए ही हैं इधर, so I don't really know what पिच कैसी होगी. Probably देखेंगे तो उसके बाद ही आपको इस सवाल का जवाब. देखिए नहीं, ठीक. Thank you. क्योंकि अभी वो पिच पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी उन्होंने पिच फाइनल नहीं की है, तो जैसे ही होगी तो वी विल सी द पिच और देन फिर उस पे हम कर सकते हैं. जी शुक्र भाई प्लीज. वकार, जो पहले टेस्ट में पाकिस्तान का जो पेस अटैक था, उसकी ओवरऑल जो कारकर्दगी है, मजबूरी कारकर्दगी, उससे आप किस हद तक मुतमईन है? क्योंकि हमने एक चीज़ नोट की है कि एशिया से बाहर जो आखिरी 8 टेस्ट मैचेस हैं पाकिस्तान के, उसमें साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, उनमें सिर्फ दो मौके ऐसे हैं, 2 टेस्ट मैचेस ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान की जो बॉलिंग है उसने हरीफ टीम की 20 विकेटें हासिल की हैं. तो ये चीज़, इसको किस तरह देखते हैं और कारकर्दगी के बारे में बताएं कि कितने मुतमईन हैं आप? There's always room for improvement, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि अगर हम टेस्ट मैच जीत जाते तो शायद ये सवाल ना आता, क्योंकि बॉलिंग तो बुरी नहीं की है, अनफॉर्चुनेटली है कि क्योंकि मैच हारे हुए तो क्वेश्चंस रेज ऑफ कोर्स होंगे. और दूसरा ये है कि पिछले 8 टेस्ट मैच तो नहीं मालूम मुझे पहले क्या हुआ है, बट ऑस्ट्रेलिया टूर एंड देन श्रीलंका, पाकिस्तान, श्रीलंका के अगेंस्ट बांग्लादेश ने, आई थॉट द फास्ट बॉलर्स डिड अ वंडरफुल जॉब. श्रीलंका के खिलाफ पिंडी में भी और कराची में भी और बांग्लादेश के खिलाफ भी. हाँ, ऑस्ट्रेलिया में प्रॉब्ली अभी हम, क्योंकि अभी बिल्कुल पहला टूर था इस मैनेजमेंट का भी, और बिल्कुल मूसा और नसीम, सब जितने भी फास्ट बॉलर थे सारे यंग थे, तो ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम जरूर लगेगा ग्रूमिंग के लिए. और जैसे मैंने कहा है ना कि क्योंकि क्रिकेट इतनी हुई नहीं है, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं लूप होल है. इंशाल्लाह वो कवर करने की कोशिश करेंगे, और आगे जब फ्यूचर में ये आपका फ्यूचर है, ये सारे फास्ट बॉलर, मुझे उम्मीद है तो पाकिस्तान के लिए डिलीवर करेंगे. जी, अली हाशमी and then Shahid Hashmi. Sorry, Shahid Hashmi and then Ali Hashmi. No, वकार, अस्सलाम वालेकुम. जी शाहिद भाई, वालेकुम सलाम. वकार, हमने देखा कि अजहर, ऑल्दो ये एस्टैब्लिश प्लेयर है, उसके क्रेडेंशियल्स पे किसी को डाउट नहीं है, रन्स नहीं बन रहे, उसका प्रेशर कप्तानी पे पड़ रहा है. क्या आप समझते हैं उसको अग्रेशन ज्यादा दिखानी चाहिए और मजीद, और कप्तानी के ऊपर जो दबाव पड़ रहा है स्कोर ना करने की वजह से, वो है प्रेशर? I don't know, Shahid bhai. Probably Azhar is the right man to answer this question. लेकिन ये है कि of course कप्तानी और फिर ऊपर की स्लॉट में खेलना, it's not easy. I mean काफी अरसे से करता हुआ आ रहा है कप्तानी, पहले भी एक दफा करके हटे हैं. जब बैड फॉर्म आपकी होती है या आप बुरा खेले होते हैं, एक मैच आपका बुरा गया होता है या इतना अच्छा नहीं खेल रहे होते, तो ऑफ कोर्स फिर हर चीज हाईलाइट होती है, आपका दिमाग एज अ कैप्टन, क्योंकि मैं खुद कप्तान रहा हूँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आपका दिमाग क्या चल रहा होता है आपके दिमाग के अंदर, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा होती हैं और आपको काफी चीजें हैंडल करनी पड़ती हैं. देन यू ऑल्सो गॉट टू फोकस ऑन योर बैटिंग ऑल्सो. ऑफ कोर्स मैंने पहले कहा ना कि अगर शायद भाई ये मैच जीत जाते, हम जाते, तो प्रोबेबली उनकी परफॉर्मेंस भी हाईलाइट ना होती और उनका ऑफ कोर्स उनको एनकरेजमेंट इससे मिलती कि हम एटलीस्ट मैच जीते हैं. तो ये शायद उसकी वजह से थोड़ा सा फील जरूर हुआ है, लेकिन ही इज अ सीजन्ड प्लेयर. आई मीन
ऑलमोस्ट 80 टेस्ट मैच खेला हुआ है. ही नोज हिज स्कोर. उसने यहाँ पे इंग्लैंड में भी स्कोर कर रखे हैं. सो ही नोज हाउ टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन. ये पहली दफा नहीं है उसके साथ ऐसी सिचुएशन हुई, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस टेस्ट मैच में और आने वाले अगले टेस्ट मैच में ही विल डिलीवर. जी अली हाशमी. वकार भाई, थोड़ा सा आपको मैच के बिल्कुल नजदीक आकर जब आप जीतने के करीब थे तो हार के थोड़ा सा धचका तो लगता है, लेकिन क्या कहेंगे, क्या फास्ट बॉलर्स रिस्पॉन्सिबल है, बॉलर्स रिस्पॉन्सिबल है, या बैटिंग इसकी रिस्पॉन्सिबल है? आई थिंक हम सारे रिस्पॉन्सिबल हैं इसके. इसमें सब आ जाते हैं, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, सब कुछ ही रिस्पॉन्सिबल है. अब आप अच्छा नहीं खेलते, अगर आप पूरा टेस्ट मैच को एनालिसिस करेंगे तो मेरा ख्याल में हम 3.5 दिन तो हम टेस्ट मैच जीत रहे थे. और क्रिकेट ऐसी फनी गेम है कि अगर सम टाइम अगली टीम अगर जब कश्तियां जला देती है और देन दे स्टार्ट प्लेइंग एग्रेसिवली, तो चीजें ऐसी हो जाती हैं. सो आई थिंक ओवरऑल अगर टेस्ट मैच को एनालिसिस करूंगा तो आई थिंक वी प्लेड रियली गुड क्रिकेट टिल द टाइम. हम आखिरी दिन, चौथे दिन के लंच तक हम लोग, मैच हमारे टोटल कंट्रोल में था. हम लोग सब कुछ, उसके बाद भी आई थिंक वी बॉल्ड वेल, बट किस्मत का साथ भी बहुत जरूरी होता है क्रिकेट में. तो आई थिंक कहीं ना कहीं हम लोग लैक कर रहे थे कि हमें थोड़ी सी लक फेवर नहीं की, क्योंकि जिस तरीके की शॉट्स उन्होंने खेली, कैचेस हाथों में नहीं गए. और प्लस फिर ऑफ कोर्स गलतियां होती हैं तो मैचेस हारे जाते हैं. तो ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं हर शोबे में गलतियां हुई, कहीं बैटिंग में हुई, कहीं बॉलिंग में, कहीं फास्ट बॉलिंग में, कहीं स्पिनर्स पे. तो ऑफ कोर्स इसका झटका तो बहुत बड़ा था, क्योंकि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह का मैच हमारे हाथ से निकल जाएगा. बट दैट्स क्रिकेट, क्या कह सकते. जी माजिद भट्टी, वहीद खान, अब्बास रजा एंड एहतशाम. जी वकार भाई, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम भट्टी साहब. वकार भाई, पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग की एक हिस्ट्री रही है. थोड़ी देर पहले जब आप अंग्रेजी में बात कर रहे थे उसको आप भी बता रहे थे, लेकिन ये जो करंट हमारी बॉलिंग लाइनअप है, अब्बास, नसीम शाह और शाहीन शाह, इन तीनों का 33 टेस्ट मैचेस का तजुर्बा है, जबकि इंग्लैंड के जो सबसे कम तजर्बाकार फास्ट बॉलर है क्रिस वॉक्स, उन्होंने अकेले ने 37 टेस्ट मैचेस खेले. एंडरसन और जो ब्रॉड हैं उन्होंने 1200 से ज्यादा टेस्ट विकेटें ली हुई है. तो जब हम इतने कम तजर्बाकार बॉलिंग अटैक के साथ जा रहे हों, यासिर शाह को कह सकते हैं कि 40 टेस्ट मैचों में 221 आउट किए हुए हैं, तो आप समझते हैं कि ये टीम इतनी कैपेबल है कि हम इंग्लैंड में हरा सके? बड़ी साहब, मसला ये है कि अब इनएक्सपीरियंस हैं, ये तो हम सबको नजर आ रहा है, और हमारे पास और चॉइस भी कोई नहीं है. और जब खेलेंगे, ज्यादा खेलेंगे तो एक्सपीरियंस आएगा, तो जब तक खेलेंगे नहीं तो एक्सपीरियंस नहीं आएगा. तो आई थिंक कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा. नसीम शाह है, जैसे शहीन भी है, आई मीन दे ऑल वेरी टैलेंटेड, इस तो आप सबको मालूम है. और क्योंकि पिछला टेस्ट मैच बनाया भी इन्होंने जिस तरीके से सेटअप किया, और सारा अगर आप पहली इनिंग उठा के देखें तो जिस तरीके से फास्ट बॉलर्स बॉलिंग, आई थॉट दे बॉल्ड रियली वेल. सेकंड इनिंग में भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की, बट अनफॉर्चुनेट है कि हम उनकी बॉलिंग का तजर्बा और हम अपनी बॉलिंग का तजर्बा उसको मैच नहीं कर सकते. इसमें तो कोई दो राय या दो सोच है ही नहीं ना, कि हम क्या करें. फिर जो हमारे पास चॉइस है, एंड दिस इज द बेस्ट चॉइस. और यही लड़के थे जिन्होंने अभी रिसेंटली होम सीरीज में इन्होंने ही मैचेस जितवाए पाकिस्तान को. और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अभी सीरीज खत्म नहीं हुई है, अभी एक ही टेस्ट मैच हुआ है. उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम लोग बाउंस बैक करेंगे. जी वहीद भाई. हाँ वकार, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी जब ये टेस्ट मैच हुआ तो ऑब्वियसली बात है कि जब इतना मतलब हैवी वेट कोचिंग स्टाफ हो तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है लोगों की फ्रॉम दिस टीम डिस्पाइट इट्स इनएक्सपीरियंस. और इस टेस्ट मैच के बाद काफ़ी कुछ फॉर्मर प्लेयर्स ने ये बात कही. उनका मानना ये था कि जो कोचिंग स्टाफ था उनको ज़्यादा प्रोएक्टिव रोल प्ले करना चाहिए था on the fourth day in the last session जब विकेट्स नहीं गिर रही थी. I wanted to ask you, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपका क्या टेक है कि जब इतने मतलब भारी भरकम लोग कोचिंग स्टाफ में हो तो आप क्या अपना रोल देखते हैं? क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले मेंशन किया कि अभी आपको पता नहीं कि मिसबाह के जहन में क्या है कि किसको खिलाना चाह रहा है.
तो क्या आप लोग का कोई रोल होता है इन द फाइनल डिसीजन कि कौन सी टीम खेलेगी या क्या स्ट्रेटेजी होगी मैच में, या यू आर जस्ट मतलब व्हाट्स योर टेक ऑन इट? वहीद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वहीद भाई, मसला ये है कि आपने बड़ा बिल्कुल ठीक कहा कि बड़ा हैवी वेट ये ड्रेस रूम है, जो मैनेजमेंट है, जो आपके कोचेज हैं, ये हैवी वेट्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात ये है कि ये ग्राउंड के बाहर तक रह सकते हैं और ग्राउंड के अंदर नहीं जा सकते। सर्टन चीज़ें आप नॉलेज दे सकते हैं, ट्रेनिंग करा सकते हैं, लेकिन जो डिलीवर करना है या बॉल करना है या बैटिंग करनी है किस तरीके से, वो प्लेयर के हाथ में होती है। वी आर वर्किंग ऑन इट कि इंशाल्लाह इसको बेहतर से बेहतर किया जाए। इनको एक्सपीरियंस जब और मिलेगा तो इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे ये इंशाल्लाह ये लड़के। और बाकी जहाँ तक बात के डिसीजन, ऑफ कोर्स डिसीजन इज द चीफ सेलेक्टर एज वेल एज द हेड कोच, तो फाइनल अथॉरिटी तो ऑफ कोर्स ही इज द मैन मिसबाह उल हक। लेकिन जब हमसे मशवरा लिया जाता है या पूछा जाता है तो हम डेफिनेटली अपना मशवरा देते हैं। थैंक यू। एहतशाम एंड अब्बास रजा। जी वकार भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वकार भाई, पूछना ये था कि जो टीम का कॉम्बिनेशन है, 5 बैट्समैन, 1 विकेट कीपर, 5 बॉलर खेल रहे हैं, तो हमारी जो मिडिल ऑर्डर है वो भी आउट ऑफ टच लग रही है। आप समझते हैं कि इसमें एक बैट्समैन का इजाफा किया जाना चाहिए? टू बी ऑनेस्ट, अभी आई कांट रियली इस सवाल का जवाब मैं दे नहीं सकता, क्योंकि अगर ये कहते हैं कि जो हमने ऑलराउंडर खिलाया था शादाब, तो शादाब ने तो पहली इनिंग में भी 45 रन किए थे, फिर 20 रन उसने फिर भी सेकंड इनिंग में किए थे। रन्स तो उसने किए थे, बॉलिंग शायद उतनी नहीं कर सके या उतनी उनको यूज करने का टाइम नहीं आया। अदरवाइज तो आई थिंक ही डिड अ गुड जॉब। अब ये है कि दैट ओनली बिकम के जी व्हाट our chief selector and the head coach wants कि क्या is he want to go with another batsman? I don't know, to be honest। मेरे पास अभी इस सवाल का जवाब नहीं। रजा, मैं सवाल करूं? जी अब्बास। विकी भाई, एक सवाल ये है कि वो यहाँ पे एक आम तासर है कि क्रिस वॉक्स जो है उसके खिलाफ हमने कोई बॉलिंग का प्लान ही तैयार नहीं किया था, क्योंकि हम उसे बैट्समैनों में कंसिडर नहीं कर रहे थे। तो क्या ऐसा है कि वो आप इग्नोर हो गए आपकी प्लानिंग में क्रिस वॉक्स जो है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये किसने ये तासर फैलाया, ये बताएं मुझे आप पहले। तासर बहुत ज्यादा फैला है, वो साबिक क्रिकेटर, आपको पता है, आपके दोस्त ही हैं सारे। कोई बात नहीं। वो बड़ा आसान होता है, मुझे भी मालूम है, बिकॉज आई हैव बीन आल्सो पार्ट ऑफ द मीडिया, कि आसान होता है कि बैठ के बात कर देना, लेकिन रियलिटी क्या होती है वो हम जानते हैं, और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, हम ही जानते हैं। तो आई थिंक वी प्रिपेयर्ड आवरसेल्फ रियली वेल, अगर देखा जाए पूरा टेस्ट मैच। लेकिन क्रिकेट है, मैंने कहा ना कि कई दफा ऐसा हो जाता है। थैंक यू। जी अतीक, देन अबू बकर। नहीं रजा भाई, मेरा सवाल हो चुका है। थैंक यू। ओके, अबू बकर प्लीज। मे बी अबू बकर आपको आवाज नहीं आ रही। जी अरशाद, प्लीज आप क्वेश्चन करिएगा। ओके, देन इनको भी नहीं आ रही। आवाज आ रही है मेरी? जी। अच्छा वकार भाई, मेरा सवाल ये था कि सुहेल खान ने जो है वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी साइड मैचेस में भी, जो हमारे आपस में इंटर स्क्वाड मैचेस हुए, तो क्या उनकी सिलेक्शन ज़ेरे गौर आ सकती है अगले कुछ दोनों टेस्ट मैचेस में या इस टेस्ट मैच? देखें, 16 लड़के हमने लास्ट मैच में भी अनाउंस किए थे और 16 में उनका नाम था। अभी प्रॉब्ली मिसबाह उल हक अभी थोड़ी देर में 16 लड़कों को अनाउंस कर देंगे। तो अभी देखना ये है कि वो उनका नाम उसमें आता है नहीं आता है। तो ऑफ कोर्स हर बंदा, यहाँ पे हम लोग 29 लड़के हैं, इवन T20 में भी चॉइस तो हमारे पास है। हम तो किसी को बुलाकर भी खिलाया जा सकता है। तो ऑफ कोर्स दैट इज टोटली ऑन, इग्नोर नहीं किया जा रहा किसी को भी।
जी अशोक चौधरी साहब प्लीज। जी आवाज आ रही है अशोक भाई? ओके वी विल मूव ऑन। जी नादरा एंड जाहिद गफार प्लीज। जाहिद एंड नादरा प्लीज। ओके बिलाल प्लीज आप क्वेश्चन करिएगा। जी बिल्कुल वकार भाई, जिस तरह से हमने पिछले मैच में देखा कि दूसरी इनिंग में जब 5 विकेट हमने हासिल कर ली थी, तो उसके बाद जब क्रिस वॉक्स और जोस बटलर की पार्टनरशिप स्टार्ट हुई तो हमारे जो बॉलर्स थे उनको क्योंकि वसीम अकरम ने भी कहा कि उन्होंने कोई भी ऐसी बॉल नहीं की जो बैट्समैन को परेशानी में डाल सके, जैसे यॉर्कर्स होते हैं, शॉर्ट लेंथ बॉल्स होती हैं। तो क्या कप्तान ने उस टाइम कोई प्लानिंग नहीं दी, या जब ब्रेक्स हुई तो आप लोगों की जानिब से कोई ऐसा बॉलर्स को प्लान नहीं दिया गया? आप ये कह रहे हैं कि हमने मतलब कि जब 5 आउट हो गए तो उस पे उसके बाद कोई बॉल ऐसा नहीं किया जिसपे विकेट मिल जाए? ये वसीम अकरम जो है उन्होंने कहा था। आई थिंक आप एक दफा फिर दोबारा से वसीम भाई का जो भी स्टेटमेंट उन्होंने दी थी वो एक दफा दोबारा सुन लें, फिर आके सवाल करिएगा प्लीज। जी नादरा प्लीज। मैं करूं सवाल? जी जी जाहिद प्लीज। वकार भाई अस्सलाम वालेकुम, जाहिद गफार न्यूज़ कराची से बात कर। मेरा सवाल ये है वकार भाई कि हमने सेकंड इनिंग में इंग्लैंड के 5 आउट कर लिए थे 119 या 117 रन के ऊपर। क्या हम हमारे जो प्लेयर्स हैं उन्हें यकीन हो गया था कि हम बाकी के भी 5 खिलाड़ी आउट कर लेंगे, हम रिलैक्स हो गए थे, या क्या वजह थी कि जिसकी वजह से हम वो 5 खिलाड़ी आउट नहीं कर सके, या आपने कोई फास्ट बॉलर को ऐसा प्लान नहीं दिया? क्योंकि माइकल होल्डिंग का भी बयान आया कि उन्होंने कहा कि शॉर्ट पिचेस नहीं करी फास्ट बॉलर ने जो उनको करना चाहिए था, क्योंकि जो वॉक्स थे और जो दूसरे प्लेयर खेले थे बटलर वो रूम ले रहे थे, अगर उनको ऊपर गेंदें कराई जाती तो वो शायद पाकिस्तानी जो फास्ट बॉलर को आउट करने में कामयाब हो जाते। आपने इतना लंबा सवाल कर दिया, मुझे तो आपका भूल ही गया कि आपने शुरू कहाँ से किया था। दोबारा से करेंगे प्लीज सवाल? मैं ये पूछ रहा, मेरा सवाल ये था भाई कि हम रिलैक्स हो गए थे, हमारी टीम, हमारे कप्तान, आप ये कह रहे थे, आपने ये कहा कि 5 विकेट के बाद हमें यकीन हो गया था कि हम अगली 5 विकेटें ले लेंगे। हमें पहली विकेट से पहले ही पता था कि हम इंशाल्लाह 10 आउट कर लेंगे। दैट्स व्हाट द प्लान इज। हमारा प्लान ये था। ये प्लान तो हरगिज नहीं था ना कि 5 के बाद हम उनको नहीं आउट करेंगे। ये कैसे हो सकता है? दैट कांट बी द प्लान। तो क्रिकेट जैसे, अगर आप क्रिकेट को समझते होंगे तो अनफॉर्चुनेट है, क्रिकेट में ऐसा हो जाता है सम टाइम ना कि आप अपने पूरी कोशिश करते हैं और आपका दिन नहीं होता, लक फेवर नहीं करती, आपके कैचेस इधर उधर गिर जाते हैं। तो इट हैपेंस इन क्रिकेट। अगर आप इसको अगर आप क्रिकेट की हिस्ट्री में जाएं नहीं वो बात सही है, लेकिन बॉल करनी चाहिए थी, वो बॉल फास्ट बॉलर्स नहीं कर सके। मैंने उसका भी आपको जवाब दे दिया। आई थिंक किसी और ने मुझसे सवाल किया था। जी अस्कर लास्ट क्वेश्चन प्लीज। हेलो नादरा एंड देन अस्कर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम वकार। फवाद आलम के एक्सपेक्टेशंस हैं कि सेकंड टेस्ट में वो होंगे शादाब की जगह, बल्कि इनफैक्ट वो हो ही चुके हैं शायद। तो आप उनसे क्या आपको उम्मीद है, क्योंकि एक अरसे के बाद फवाद जो है इंटरनेशनल मैच खेलेंगे, कोई उनसे होप्स हैं कि वो शादाब की जगह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे देंगे बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी? अब ये है कि आपको पता चल चुका है कि वो खेलेंगे, तो मुझे नहीं पता चला, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि वो खेलेंगे। और इंशाल्लाह अगर वो खेलेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा करेंगे। हम उनसे बहुत सारी उम्मीदें लगा के रखेंगे इंशाल्लाह। जी अस्कर प्लीज। जी अस्कर आवाज आ रही है आपको प्लीज? ओके जी थैंक यू वेरी मच। अभी क्योंकि विकेट प्रिपेयर हो रहा था, इसलिए अभी जो जैसे ही कुछ फाइनलाइज होंगे स्क्वाड मेंबर्स तो हम आपको बता देंगे। अभी फर्दर इस पे कोई अपडेट नहीं है, जैसे ही होगा वी विल लेट यू नो गाइस। थैंक यू वेरी मच आप सबका टाइम देने का। अब हमारी प्रैक्टिस जो है वो इस वक्त स्टार्ट हो रही है। थैंक यू वेरी मच जी।